So we have interference by reflection. Here we can say it's called Lloyd's mirror. So look at this. So what the situation is very simple here. We have a mirror here, a fixed length mirror. Let's say this mirror is some length b. Okay, and at a distance a from here. Let's say at a distance a from here, I have a source. थोड़ा ऊपर ले लेते हैं सोर्स को यहाँ पर S. Let's call this distance as some E. This is some E. Okay, this is E. And let's say थोड़ा और आगे मिरर से we have a some C distance from mirror. I have a screen. एक screen लेते हैं. Okay, now what will happen? Interference will happen because of there is a direct light which is going on the screen, plus reflected light is going on the screen. ठीक है, तो I must get some interference pattern. So look at this. I'm going to draw from some reflected light first. ठीक है, तो reflected light देखो ऐसे दिख रहा है. ये ऐसे आया. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो आई थिंक ऐसा कुछ. ओके, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट, isn't it? Because mirror starts from here, है ना, and this would be your last reflected light. सही है क्या? ठीक है, so this is reflected light number 1. Okay, and this is the reflected light number last वाला. Plus you have a direct light also. ठीक है, जैसे this is orange one is the direct light. Direct light भी ऐसे incident हो रहा है. You must understand कि screen पे only this region has reflected light available, है ना, because ये first reflected light है, ये last reflected light है, तो reflected light इतने region में मिलेगा. ठीक है, direct light तो हर जगह मिल रहा है, reflected light इतना ही मिल रहा है अपने को. ठीक है, that means this will be our what? This will be our interference region. समझ में आएगा? Let's call this को x, some x. ठीक है, any questions till this time? अच्छा, now what we do is we can assume that कि ये जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसे बैक ट्रेस कर लो इसको. ओके, इसको बैक ट्रेस करो, ये देखो और ये देखो. We can say that कि this reflected light is coming from a virtual source which is kind of image of this guy only, and this distance will be E, image of the source. इसको बैक ट्रेस करोगे, ठीक है, इसको बैक ट्रेस करोगे तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, इसके इमेज पे ही आके गिरेगा. ठीक है, ओके, तो नाउ वी कैन से दैट कि स्मॉल डी इफेक्टिव इज 2E, है ना. ठीक है, एंड कैपिटल डी इफेक्टिव इज A plus B plus C. शाबाश. ठीक है, ओके, एंड देन व्हाट विल बी योर बीटा? इट विल बी लैम्डा कैपिटल डी इफेक्टिव और स्मॉल डी इफेक्टिव, विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, A plus B plus C by 2E. करेक्ट? समझ में आएगा? इफ दे आस्क मी नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो दैट इज गिवन डिस्टेंस upon fringe width, है ना. If I tell you कि there are 4 fringes in 10 meters, what is the fringe width? 10 by 4 वैसे ही मतलब. ठीक है, तो बीटा इज x upon n, तो x n will be beta x. This is number of fringes. ठीक है, this is number of fringes we can count in a particular region. समझा? तो इंटरफेरेंस x है, तो क्या बोलते हैं, x upon बीटा किया तो नंबर ऑफ फ्रिंज मिल जाएगा तुमको. Is making sense to you? अच्छा, बट यू शुड अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है
कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से कॉल दिस पॉइंट P, तो पॉइंट P पे इंटरफेरेंस एक डायरेक्ट लाइट की वजह से हो रहा है, विच आर कॉलिंग दिस ऑरेंज लाइट एज डायरेक्ट लाइट, राइट? इट्स अ डायरेक्ट लाइट. ओके, ऑल्सो देयर इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट विच इज मीटिंग यहाँ पे. तो ये दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर. हमको पता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, एंड ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. दैट मीन्स क्या होगा पता है? ठीक है, जो तुम लोग लिखा था देयर इज एडिशनल, आई जस्ट मेक इट सर्कल यहाँ पे. तो एट दिस पॉइंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट आई कैन से एडिशनल path difference of lambda by 2 has happened. समझ में आया क्या? तो इसका मतलब पता क्या है? Your condition will get reversed. For example, see remember delta x is equal to n lambda we should write for bright. तो यहाँ पे लिखे delta x plus lambda by 2 is n lambda. Delta x is equal to n lambda minus lambda by 2, which is actually 2n minus 1 lambda by 2. है ना? इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसा होता है तो कंडीशंस गेट रिवर्स. तो जस्ट राइट कि ब्राइट का जो कंडीशन है और जो डार्क का कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगा. मतलब डेल्टा एक्स अपन जब निकालेंगे, ठीक है, अगर कंडीशन रिवर्स का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकली जो निकालते हैं अपन, ठीक है, उसका रिवर्स. तो S2P में S1P किया और ऑड मल्टीपल आ रहा है तो दैट विल बी योर ब्राइट, एंड इवन मल्टीपल आ रहा है दैट विल बी योर डार्क. समझ में आ रहा है क्या? समझा ना? मतलब ठीक है, यहाँ पे बना है डेल्टा एक्स, आई मीन S2P माइनस S1P. ठीक है, यहाँ पे जैसे ये P पॉइंट है तो ये दिस रिप्रेजेंट्स S' P माइनस SP. समझ में आया? समझ में आया ना? बिकॉज ज्योमेट्रिकली तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, विल पुट D sin थीटा और समथिंग लाइक दैट. अरे सी ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट? है ना? ठीक है, अब एडिशनल पार्ट डिफरेंस लगा दिया यहाँ पे प्लस लैम्डा बाई 2. crest becomes trough, trough becomes crest ना आफ्टर रिफ्लेक्शन. वेव से पढ़ा था ना हमने, वेव से पढ़ा था कि नहीं भाई? अगर ये crest यहाँ पे गया तो रिफ्लेक्ट हो क्या आएगा अगर हार्ड सरफेस है तो? वही तो हाँ, ठीक है, तो वही तो बता रहा मैं. डू यू रिमेंबर दिस? लाइट द ट्रांसफर है, राइट? देयर हैज टू बी अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. और फिर इसको यहाँ पे ले लो बस, तो क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स जो है दैट विल बी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 मिलेगा तुमको. समझ में आया क्या? डेल्टा एक्स का मतलब आई एम नॉट सेइंग पार्ट डिफरेंस कंडीशन चेंज हो गई है, ठीक है. जनरली व्हेन आई से डेल्टा एक्स वी अज्यूम इट टू बी दिस वैल्यू, राइट? ठीक है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू n लैम्डा लिखोगे अगर तो दैट वुड बी रॉन्ग. समझा क्या? इसको 2m माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन आई से कि d sin थीटा, तो व्हाट इज दैट d sin थीटा? इट इज S2P माइनस S1P. या y d by d, व्हाट इज दैट वैल्यू? इट इज S2P. ज्योमेट्रिकली इट इज S2P माइनस S1P. समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे देखो, जैसे प्रीवियस डेरिवेशन, अभी स्लाइड रह गया है, ठीक है, बट इन द प्रीवियस डेरिवेशन वी सेड ना डेल्टा एक्स इज इक्वल टू d sin थीटा माइनस d sin अल्फा, राइट? है ना? दिस कुड बी रिटन एज y d by d. समझ में आ रहा है क्या? ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू? ये S2P माइनस S1P की वैल्यू है. समझ में आया ना? मतलब ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमने सॉल्व करके निकाला है कि S2P माइनस S1P का वैल्यू क्या होता है? इट इज d sin थीटा या y d by d, है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वो वैल्यू को अगर मैं n लैम्डा लिख दूंगा अगर, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई स्मॉल d इफेक्टिव पता है, ठीक है, कैपिटल D इफेक्टिव पता है, तो डायरेक्टली मैंने क्या लिखा कि डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है मुझे? y स्मॉल d बाई कैपिटल D इफेक्टिव. इसको अगर n लैम्डा लिख दूं डायरेक्टली दैट वुड बी रॉन्ग फॉर ब्राइट फ्रिंज. समझा? इसको लिखना चाहिए मुझे 2m माइनस 1. चमका? समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो व्हेन आई से डेल्टा एक्स आई मीन ये वाला सबट्रैक्शन, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है उसकी बात चल रही है. समझ में आएगा? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट. यही सेम सेटअप में व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक बाई मिरर आल्सो. बता देते हैं यहाँ पे. जैसे इफ आई कैन हैव सेटअप्स लाइक दिस एंड आई पुट अ सोर्स बीच में, what will happen? One light is reflected from mirror 1, other from mirror 2, both can interfere on the screen. ठीक है, तो बाय मिरर्स दे डोंट आस्क यू, बट ऐसे मिरर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उसका ज्योमेट्री प्रॉपर्स देना पड़ेगा अपने को, सो दैट यू कैन कैलकुलेट क्या बोलते थे पार्ट डिफरेंस प्रॉपर्ली, है ना? अगर ये बाय मिरर में क्या होगा कि यहाँ भी लैम्डा बाई 2 यहाँ भी लैम्डा बाई 2, तो देन कंडीशन विल रिमेन अनचेंज्ड. लैम्डा बाई 2 लैम्डा 2 क्या है? लैम्डा, तो वापस से कंडीशन हो जाती है.
हाँ कोई कोई ना, हम तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आया ना, वी टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट विल ऑब्टेन देयर, ठीक है। इफ आई हैव टू गेट उसका फ्रिंज विड्थ या उसका क्या बोलते हैं, कौन सा फ्रिंज कहाँ बन रहा है, तो आई हैव टू गो बाय दिस मेथड ओनली, बट आई विल नॉट चेंज वहाँ पे पार्ट डिफरेंस का कंडीशन, ओके, बिकॉज क्या बोलते हैं देयर आर 2 λ/2 दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ भी λ/2 मिल रहा है और यहाँ भी λ/2 मिल रहा है, तो मतलब इफेक्टिवली इट्स द सेम थिंग, रिफ्लेक्ट होकर जो भी बनेगा जैसे ही बनेगा आई गेट द सेम थिंग, समझा। इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल बाय मिरर। अपने सिलेबस में जो प्रॉपरली पढ़ते हैं हम लोग वो है फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। लेट्स टॉक अबाउट बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बट इसके लिए थोड़ा सा मुझे तुमको ऑप्टिक्स बताना पड़ेगा। सी I don't know whether you have done this in your lower standard or not. Let's say if you have a prism like this. This is called as refracting angle or prism angle. Angle of prism है उसको refracting angle बोलते हैं हम लोग, ठीक है, okay. And let's say if you pass a ray like this, तो what will do, prism क्या करेगा, ठीक है, जो ऐसे रे जो बाहर निकलेगा वो ऐसे आएगा, राइट, है ना। And if you backtrace this ray, so you will feel that कि the source is not here but rather it is here. तो basically ये जो ऑब्जर्वर है ना, इसको क्या लग रहा है कि सोर्स यहाँ पे, तो उसके लिए ये क्या हो जाए, एक्चुअली रियल सोर्स ये है, what it has created is a virtual source. This is my S dash or virtual source, correct, ठीक है। and you should know couple of more formulae. Let's call this as delta. What is delta? Deviation, ठीक है। रे जाना था ऐसे और जा रहा है ऐसे, राइट, जाना था स्ट्रेट बट गया ऐसे, राइट, दिस एंगल विल डिविएशन, दैट इज दिस एंगल इज आल्सो डिविएशन, समझा क्या, ठीक है। आर गेट द पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, डिविएशन ऑफ द रे, आर गेट द पॉइंट। अच्छा, तो यू शुड नो दैट कि डेल्टा का वैल्यू फॉर थिन प्रिज्म इज a इंटू म्यू माइनस 1, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड a इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं इसको, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स से आया है, ठीक है, कि जो डिविएशन का एंगल होता है वो कितना होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। तुमने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो विल डू इट इन रे ऑप्टिक्स प्रॉपर्ली, ओके। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a इज रिफ्रैक्टिव एंगल, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन बाय थिन प्रिज्म, दैट इज द फॉर्मूला, समझा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा और सुनो, अभी if I know that this distance is some a and this is some e, so we can write that कि tan delta is equal to what, e by a, small angle चल रहा है यहाँ पर, तो e is simply a delta, which means this is a into mu minus 1, है ना, correct. I am just putting the value of delta from here, समझा क्या, समझ में आएगी, बाउंसर जा रहा है भाई, देखो एरर नहीं, इट्स अ डिस्टेंस, एंगल स्मॉल, थिन प्रिज्म, ये फॉर्मूला भी थिन प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, मतलब स्मॉलर एंगल्स के लिए, ठीक है, और थिन प्रिज्म में तो डेल्टा भी छोटा ही होगा, यस थिन प्रिज्म मतलब नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, नीचे वाला एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए तो वो देखो मतलब तो अलग होगा ना, मतलब अभी प्रिज्म को ऐसा रखा है वर्सेस ऐसा रखा है तो चेंज होगा ना भाई, तो वही फॉर्मूला जो ये वाला एंगल लेंगे जब यहाँ से ले जाएगा, तो अब मेरा यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स से हमने लिया है, और ये मैं ज्योमेट्री से ले रहा हूँ यहाँ से, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, ये मुझे पता है कि डेल्टा है और ये ई और ये ए है, तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने क्या बोला, देयरफॉर व्हाट विल बी योर ई, इट विल बी ए tan डेल्टा, और स्मॉल एंगल के लिए tan डेल्टा इज डेल्टा ओनली, एंड डेल्टा का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं बस, समझ आया, समझ आया सबको। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, ये पता होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा समझो ये एंगल्स आर वेरी स्मॉल, दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉल,
तो बाइप्रिज्म में क्या होता है कि यू हैव टू वेरी वेरी थिन प्रिज्म लाइक दिस. सो पतला थिन प्रिज्म लेते हैं हम लोग इस टाइप के. ओके ऐसे दो प्रिज्म्स को हम चिपका देते हैं, इसलिए उसको बाइप्रिज्म बोलते हैं. There is a glue that is there. बड़ा तो नहीं हो गया? तो हाफ कॉन्वेक्स मिरर जैसा नहीं आप करोगे? ठीक है. Okay. So let's say we have two thin prisms. These angles are very very small. This angle A, it is 1 degree or half a degree. That means this is almost 178 degrees. Extremely thin prisms. बहुत thin prism होता है. एंड देन लेट्स से समझो यहाँ पे हमने एक ए डिस्टेंस पे एक सोर्स रखा है एस. ठीक है, चिपकाया हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये सोर्स का दो वर्चुअल सोर्स बनेगा. एक वर्चुअल सोर्स यहाँ बन जाएगा S1 इस प्रिज्म की वजह से, और एक और वर्चुअल सोर्स यहाँ बन जाएगा S2. करेक्ट. एंड दिस वर्चुअल सोर्सेस के लाइट जो आएंगे दैट कैन इंटरफियर इफ आई हैव अ स्क्रीन हियर. लेट्स से आई हैव अ स्क्रीन यहाँ पर. कोई स्क्रीन भी नहीं है यहाँ पर. एनी क्वेश्चंस? दिस इज स्क्रीन. ठीक है, आई एम डूइंग थियोरेटिकल वे ऑफ डूइंग बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ओके, अब देखो क्या होगा. जो बीच का पॉइंट है इट एक्ट्स लाइक पोल टू यू. जैसे तुम बोले ना कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्शन, वैसा पोल से ऐड करता है, तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट ही जाएगी. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज प्रिज्म 1. उसका एक लाइट देखो ऐसा स्ट्रेट जाएगा, काइंड ऑफ अनडिफ्लेक्टेड. ठीक है, और दूसरा लाइट क्या होगा कि जैसे ये वाला पास होगा यहाँ से, तो इट गेट बेंड, ऐसे बेंड करके जाएगा. राइट, समझे ना. तो वैसे हम लोग जो लास्ट लाइट है वो देख रहे हैं, जैसे इसमें किया था हमने फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट टाइप्स. ठीक है, वैसे. ठीक है, तो दिस इज समझ लास्ट फर्स्ट लाइट हो गई और ये लास्ट लाइट यहाँ पे. लास्ट लाइट विल गो लाइक दिस. लेट्स अज्यूम दैट इट बेंड्स, इज गोइंग लाइक दिस, इट थोड़ा बेंड्स एंड गोस ऐसा कुछ. तो ठीक है, दिस इज क्या बोलते हैं. हाँ, थोड़ा बेंड है, स्ट्रेट बेंड हो गया. ऐसे आ रहा था, थोड़ा बेंड हो गया. ठीक है, बेंड हो, जैसे वहाँ पे ऐसे आ रहा था फिर ऐसे बेंड हो गया. ठीक है, वैसे ये ऐसे आ रहा था, थोड़ा बेंड हो गया ऐसे. समझ आया क्या? ठीक है, ऐसे ही यू हैव लेट्स से सेकंड प्रिज्म, उसके रेज भी आएंगे. तो उसका एक रे ऐसे ही जाएगा विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, लाइक जस्ट लाइक एक्ट लाइक पोल, है ना. थोड़ा ऐसे. ठीक है, एंड देन देयर इज वन रे लाइक दिस which will get bent like, और ऐसा कुछ बेंड हो गया. ठीक चलेगा. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, मैंने फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन बनाया इनका. ना यू टेल मी. ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस रीजन कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों के लाइट अवेलेबल है. ठीक है ना. एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बना दिया. इट इज़ ना, मतलब सॉरी. हाँ, ये टच होना चाहिए, टच टाइप होना चाहिए. थोड़ा गलत बन गया मेरे से. रेज गो लाइक दिस, तो इट्स थोड़ा ज्योमेट्रिकली इजी फॉर अस टू डिराइव. थोड़ा ऐसे समझ लो. ठीक है, तो अपने को डिराइव करना थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, प्रिज्म समझ लो, प्रिज्म इज डिजाइन सच अ वे दैट यू गेट लाइक दिस. ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा समझ लो कि हाँ टच कर रहा है, समझ लो. ठीक है, मतलब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा भी बढ़ भी सकता है थोड़ा सा. ठीक है, ओके, बट आई एम अज्यूमिंग की गलती, अगर बढ़ा तो बढ़ा दो, तो समझ लो कि मतलब ये रे चाहिए तो इधर भी लेगा तो भी चल लेगा, और ये रे तो इधर लेगा तो चल लेगा. ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए कि मैं इंटरफेरेंस रीजन ये क्रॉस के बीच में हूँ. जो क्रॉस है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस रीजन हूँ, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ. समझा क्या? ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा रे आया है, ये थोड़ा ऊपर गया तो भी चलेगा, और ये वाला जो है थोड़ा नीचे आया तो भी चलेगा. ठीक है, बट आई नो दैट कॉमन रीजन विल बी दिस रीजन. दिस विल बी द कॉमन रीजन, दिस विल बी द कॉमन इंटरफेरेंस रीजन. समझ में आया क्या? ओके, नाउ हैविंग सेड दिस, ठीक है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज सम b. ये डिस्टेंस को b ले लो तुम. ठीक है, इसको तुम e ले लो. ओके, ठीक है, तो अभी वही सेम राम कहानी की e का वैल्यू जो है वो क्या होगा, d स्मॉल d इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इट विल बी 2e विच विल बी, वहाँ से ले लो तुम. ठीक है, e का वैल्यू विल बी a इंटू b माइनस 1. कैपिटल D इफेक्टिव लोगे. ठीक है, दैट विल बी a प्लस b. ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड x ढूंढना है तो लोग ऐसे ढूंढते हैं. दे मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस.
Okay, they'll say this is actually D, this is actually X, this is actually E, sorry A, this is B. They can say that कि X will be equal to what? है ना, X upon D should be equal to B upon A, right? है ना, ठीक है. तो you get X का वैल्यू है, तो D का वैल्यू कितना है 2E ना, B is 2E है ना, ठीक है. और 2E मतलब इट इज 2AA into mu minus 1, करेक्ट. दैट इज योर इंटरफेरेंस का वैल्यू. समझ में आया क्या? एंड देन इफ योर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स अपॉन बीटा है ना. एंड व्हाट इज बीटा का वैल्यू? बीटा का वैल्यू वी कैन राइट यहाँ पे, इट इज लैम्डा डी इफेक्टिव बाई डी, राइट. दैट विल बी व्हाट? लैम्डा क्या है बोलो? लैम्डा ए प्लस बी बाई 2AA इंटू मी माइनस 1, ठीक है. सो एन का वैल्यू व्हाट? एक्स अपॉन बीटा, तो इट इज 2AB A mu minus 1 upon A divided by beta. Beta is lambda A plus B, ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर है ना, ठीक है. 4 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर तो कैंसिल से करके तुमको आंसर आ जाएगा. यू गेट हाउ मच? 4AB A स्क्वायर mu minus 1 स्क्वायर अपॉन lambda A plus B. This is a theoretical way of doing biprism experiment. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके. तो समझा क्या बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट? ठीक है. प्रैक्टिकली जब इसको करते हैं, ये थियोरेटिकल पूरा थियरी है मतलब, ठीक है, ओके. प्रैक्टिकली जब बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट इज यूज्ड प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है. हाँ, बनते हैं करते हैं वो लोग, ठीक है. थोड़ा कम इतना नहीं होता है, पर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकल मेथड क्या होता है? प्रैक्टिकली बाइप्रिज्म इज यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ अननोन सोर्स. ओके, कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? वही सेम, यू हैव द बाइप्रिज्म, ओके. एंड यहाँ पे सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन है, एंड स्क्रीन पे यू विल सी द पैटर्न. तो यहाँ पे पैटर्न दिखता है, देयर इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न हियर, ओके. तो व्हाट वी डू यहाँ पे, वी जस्ट कैलकुलेट एक रैंडम डिस्टेंस ले लेते हैं स्क्रीन पे, लेट्स से 5 मीटर 10 मीटर, और उसमें काउंटिंग करते हैं. मतलब जैसे डिवाइस कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जहाँ से काउंट करते हैं कितने ब्राइट फ्रिंज मुझे मिल रहे हैं. जैसे क्रॉस वायर करके होता है, ठीक है. क्रॉस वायर में देखते हैं, मतलब ऐसे देयर इज अ काइंड ऑफ व्हाट डू कॉल इट, जैसे लेंस, उसके आगे एक ऐसे 2 वायर्स लगे होते हैं, क्रॉस वायर बोलते हैं उसको. तो उसको जहाँ जहाँ मूव कर रहे हो तो क्रॉस वायर बोलते हैं. ऐसे दिखेगा तुमको, लेंस से देखो तुमको ऐसे दिखेगा, तो क्रॉस वायर बोलते हैं अपन, ठीक है. तो मैंने सी थ्रू इट यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, यहाँ पे पहला जब देख रहे हो तो एक्जैक्टली मैच करते हैं कि क्रॉस वायर का सेंटर और तुम्हारे फ्रिंज का सेंटर मैच होना चाहिए, ठीक है. फिर वहाँ से मेजरमेंट लेते हैं और नेक्स्ट मेजरमेंट पे जाते हैं, ठीक है. तो वो सब हम क्रॉस वायर से मेजर कर लेते हैं, मतलब, ठीक है. जो भी है, हमको एक रैंडम डिस्टेंस एक्स पे अपन काउंट करते हैं कितना फ्रिंज मिल रहा है अपने को. समझा क्या? काउंट कर लेना, वो तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, राइट. तो करेंगे तो तुमको एन पता है और एक्स पता है, तो इससे मिल जाता है बीटा. समझा? बीटा विल बी एक्स अपॉन एन. तो व्हाट यू गेट इज फ्रिंज विड्थ. ये पहला ढूंढ के निकाल लो, ठीक है. देन यू नो दैट कि फ्रिंज विड्थ इज आल्सो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है कि नहीं? ठीक है. तेरा काम क्या है बताया क्या? कैपिटल डी को यू कैन टेक दिस ओनली बिकॉज दिस सेटअप इज डन मैनुअली, ओके. तो दिल में प्रिज्म, उसके पीछे एक सोर्स रहेगा और आगे स्क्रीन रहेगा. समझ में आ रहेगा? ठीक है. तो मैनुअली सेटअप करते हैं तो ये डिस्टेंस ना बहुत कम होता है, मतलब दिस इज नेग्लिजिबल. तो प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं. समझा क्या? प्रिज्म और जो स्क्रीन है उसके डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब, ठीक है, ओके. तो वी अज्यूम दैट कि जो डी है इट कैन बी फाउंड प्रैक्टिकली मेजर्ड. दिस मेजर्ड मतलब कैसे मेजर कर लेते हैं हम लोग? प्रिज्म और उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, काम खत्म. ये एक वर्चुअल सोर्स पीछे कहाँ बन रहा है वो नहीं दिखते हम लोग. जहाँ पे जो वर्चुअल सोर्स S1 S2 बन रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है. तो प्रैक्टिकल करने के टाइम उसको इग्नोर कर सकते हैं. समझा? ठीक है. तो बीटा पता है तेरे को, देख क्या क्या पता है तुझे पता है बीटा, ठीक है. तुझे डी पता है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन. अगर तो स्मॉल डी मिल गया अगर, तो यू कैन फाइंड द लैम्डा का वैल्यू, इजंट इट? और स्मॉल डी कैसे ढूंढते हैं सुनो, ठीक है. ये लोग क्या करते हैं अभी, ये जो क्या बोलते हैं S1 S2 है, ठीक है, ये तो वर्चुअल सोर्स है, दिखेगा थोड़ा ना अपने को. समझ में आ रहा है क्या? तो वो क्या करते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. नाउ दिस विल डू डिटेल में व्हेन आई डू रे ऑप्टिक्स, पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा तुमको कि ये कैसे काम करता है,
ठीक है। बट उसका जिस्ट देता हूँ, उसका फंडा क्या है लेंस डिस्टेंस मेथड का, कि अगर सोर्स मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसका दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज अ स्क्रीन, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के इसका डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, ठीक है, तो और समझ लो तुमने एक यहाँ पे लेंस रखा इस पोजीशन में, दिस वी कॉल दिस एज यू, दिस एज वी, राइट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि समझ लो तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और यू डिस्टेंस पे लेंस रखा है, यहाँ पे भी रखा और तुमको इमेज मिल गया यहाँ पे, लेट्स से यू गॉट इमेज एज सम d1, ठीक है, इसको d ले लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट का हाइट d ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, लेट्स से इमेजिन दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ओके। तो दिस वाज इनिशियली 20, दिस वाज 80, दे से दैट इफ यू स्विच इट, मतलब मैंने क्या किया कि ये और इसको चेंज नहीं करा मैं, हाँ इन दोनों को चेंज नहीं करा मैं, ठीक है, खाली यहाँ पे क्या बोलते हैं v ले लिया, लेंस लगा के यहाँ पे u ले लिया, समझा ना मतलब, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अभी अगर ऐसा किया एग्जैक्टली स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, इमेज वहीं बनेगा, यू नो दैट व्हेन आई रिप्लेस, जब हम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और लेंस चेंज करते हैं तो इमेज का डिस्टेंस होता है f 2f, वो सब किया होगा तुमने, ठीक है। हम इसको प्रूव करेंगे, थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है, कि अगर एग्जैक्टली एक्सचेंज कर दिया डिस्टेंस को, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन रिमेन्स फिक्स्ड एंड आई रिप्लेस यू एंड वी एग्जैक्टली, ठीक है, तो इमेज वहीं बनता है, खाली क्या होगा कि साइज बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर d1 आ रहा था तो नाउ इमेज इट विल बी d2 समथिंग एल्स, चमका की बाउंसर, ठीक है। दिस विल बी प्रूव्ड रे ऑप्टिक्स में जब कराऊंगा तो पूरा प्रूव कर बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट ये कंसेप्ट याद रखो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज फिक्स्ड और लेंस रखा है यहाँ पर, इमेज वहाँ बन रहा है, तो यूवी को एक्सचेंज करो वापस इमेज वहीं बनेगा, बट साइज ऑफ द इमेज विल चेंज, चमका, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन v अपॉन u है ना, इज इक्वल टू, इन द फर्स्ट केस इफ आई डू, ओके, क्या मिलेगा मुझे, इट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। यही मैग्निफिकेशन में सेकंड केस में निकालू अगर, तो इट विल बिकम u by v, बिकॉज नाउ द इमेज डिस्टेंस इज u ना, एंड दिस विल बी व्हाट, d2 अपॉन d, d2 अपॉन d, बराबर ना। चमका देख, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये इमेज हाइट, सॉरी ये इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, तो मैंने क्या लिखा देख, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, लिखा सेम यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू यू गेट, m is equal to d1 d2, नहीं d1 upon d2, ये v कैंसिल, u कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई दिस टू, तो क्या, d1 is equal to d2, इसको हटा दो यार, अभी करो, d1 is equal to d2, दिस इज केस 1, हाँ, तो विल गेट d is equal to root of d1 d2, तो इफ आई एम एबल टू गेट दिस इमेजेस आई कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो सोर्स है और ये लेंस वगैरह लगा के रखा है, जो भी यहाँ पे लेंस लगाते हैं वो लोग, और दे ट्राई टू ऑब्टेन 2 वाइट स्पॉट्स, समझा, वो जो 2 वाइट स्पॉट्स है वो एक्चुअली वर्चुअल सोर्सेस के इमेजेस होते हैं, समझ में आया क्या, और दे नोट कि भाई ये u है और ये v है, नोट कर लिया, और ये जो डिस्टेंस है वाइट स्पॉट का, इससे तो d1 मिल जाता है, समझा, और ये जो 2 वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस है वो तो d अपने लिए, फिर एक्सचेंज करते हैं, फिर वाइट स्पॉट ढूंढते हैं तो d2 मिल जाता है, तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला लगाया तो अपने को आराम से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, व्हाट इज d अपना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस, तो अपने ये जो लास्ट मिसिंग पजल था, ठीक है, वही मिल जाएगा, समझ में आया क्या, सब मिल गया तो यू कैन ऑलवेज कहते हैं लैम्डा। तो ऐसे रेड लाइट का वेवलेंथ, ब्लू लाइट का वेवलेंथ तुम निकाल सकते हो, चमका की बाउंसर, समझ में आया ना बाइप्रिज्म में क्या हो रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर, श्योर, ठीक है। तो मैं पॉज करता हूँ एक्चुअली, ये लिख लो तो बाद में भूल जाओगे। तो स्क्रीन हियर, there is source, let's say this is a you can see, you can assume this is a mirror also, okay, this can is a reflective screen, okay, and there is a source यहाँ पे, and a detector is moving along this line, so detector is moving like this, यहाँ से शुरू किया उसने, it is moving along this line, which is find the x का value for maxima, x for
द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम फॉर मैक्सिमम, दैट्स द क्वेश्चन. ऑप्शन दे देते, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 8. ठीक है. पहली बात तो सी यू शुड अंडरस्टैंड कि डिटेक्टर इज मूविंग, सो डिटेक्टर यहाँ पर है तो इट विल एनकाउंटर टू सोर्सेस, टू लाइट्स. एक तो लाइट डायरेक्टली आ जाएगा और एक आएगा रिफ्लेक्ट होके. समझ में आ रहा है क्या? तो इट विल एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड डायरेक्ट रे. ठीक है. ओके. तो डेफिनेटली इंटरफेरेंस मिलने वाला है, इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में बात करें तो इट मेक सेंस, है ना. हाउ डू आई फाइंड दिस एक्स? व्हाट आई विल डू इज आई विल से, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एल. ओके. एंड लेट्स से पॉइंट पी पे मेरा क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस हुआ जो एक्स डिस्टेंस पे है. ओके. तो आई कैन से दैट कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी? इट विल बी, ये एल प्लस एक्स डिस्टेंस चल रहा है. ठीक है. और ये कितना चला? तो एल माइनस एक्स चला ये. ठीक है. हाउएवर वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, है ना. तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 और आएगा, तो प्लस लैम्डा बाई 2. चमका की बाउंसर. दिस लैम्डा बाई 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ यू आर डूइंग साउंड वेव्स. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि लाइट का कर रहे हैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, है ना. साउंड वेव करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें नहीं होगा. समझ में आया ना? ठीक है. ओके. तो यू अंडरस्टैंड दैट. तो प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज द पाथ डिफरेंस एंड दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा. मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या करें, इसको 1 डालेंगे. समझा? मिनिमम वैल्यू के लिए. ठीक है. फर्स्ट मैक्सिमा के लिए. ओके. 0 CBF या मिनिमम कैसे फिर? ठीक है. ये कट करा, है ना. तो क्या मिला? 2x इज इक्वल टू, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. It's a mirror. Okay. And let's say at d distance, ये लाइन पे डिटेक्टर चल रहा है. ओके. दिस डिस्टेंस इज d. इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर सम. ठीक है. द डिटेक्टर इज गोइंग ऑन दिस लाइन. ठीक है. ओके. एंड लाइट इज इंसिडेंट ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है. समझ लो थीटा एंगल पे. अब थीटा एंगल पे क्या हुआ कि दिस लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना. तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट आया ऐसे, एंड लाइट यहाँ से आ ही रहा है, मतलब समझो थीटा एंगल पे. ओके. तो दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया. एंड लेट्स से दिस अ डायरेक्ट लाइट आल्सो, ऑरेंज मिल रहे थे. जैसे ऑरेंज ऐसे होता है, जैसे ये लाइट जा रहा है वैसे डायरेक्ट लाइट भी आ ही रहा है. तो एक डायरेक्ट लाइट भी आ गया ऐसे. ठीक है. तो दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से जो ये चल रहा था उसको क्या बोलते हैं, एक, जब यहाँ पे आया तो उसको क्या मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला. समझ में आया क्या? ओके. ठीक है. ऐसा बोल रहा है आपने थीटा से, ये दिस इज गिवन टू अस कि दिस लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा. ओके. विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ऐसे लाइट्स फॉल कर रहे हैं एंड डिटेक्टर इज मूविंग अलोंग दिस लाइन. दिस इज डिटेक्टर व्हिच इज मूविंग. ओके. एंड दे आर सेइंग कि ये जब मूव हो रहा था तो जब डिटेक्टर यहाँ पर आया तो ये एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट लाइट आया, दोनों के वजह से इंटरफेरेंस मिल रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है हमको कि फाइंड बहुत सारे कुछ पूछ सकते हैं इसमें. ठीक है. जैसे लैम्डा भी पूछ सकते हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना. और अगर आस्क यू थीटा आल्सो. ठीक है. लेट्स से थीटा ढूंढते हैं. फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमा ले लेते. चलो फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमा. ठीक है. ओके. ट्राई करो.
यहाँ देखो, तो ये सब होगा। सी मतलब थीटा अपने को किसके किसके टर्म्स में चाहिए, लैम्डा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है डी, वो सब चीज़ की है ना, तो ये सब इनके बीच रिलेशन पूछ लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्या करेंगे देखो, सी व्हेन दे टॉक अबाउट मैक्सिमम एक्स कुछ भी पूछे अगर, तो वी शुड इन एनी YDSCA क्वेश्चन में यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस वैल्यू डेल्टा एक्स, हमेशा इसके बारे में सोचो, ये कैसे निकालोगे, समझ में आएगा। अगर डेल्टा एक्स मिल जाए तो तुम्हारा काम खत्म, तो उसको उस पर कंडीशन लगा लो, डेल्टा एक्स से क्या मिल सकता है, डेल्टा फाइव मिल सकता है, डेल्टा फाइव से इंटेंसिटी मिल सकती है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो हमेशा YDS से कोई भी सम आए तो पहला तुम्हारा जॉब क्या है, टू फाइंड पार्ट डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ओके, वो अपने पीछे भी किया था एक्चुअली, सेम व्हेन यू डिड शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस वाला किया था अभी तभी। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मतलब कैसे निकालो, ये वाला लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आया, ये लाइट ऐसे गया, ठीक है, तो आई कैन से दैट, सी इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर यहाँ से इस लाइन के ऊपर ऐसा कुछ, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने तो आई कैन से दैट ये जो एक्स्ट्रा लाइन यही तो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, है ना, बिकॉज यहाँ तक तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ग्रीन वाले ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये मुझे डिस्टेंस मिल जाता है अगर मेरा काम हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड दैट, ये मुझे ये एक्स्ट्रा ग्रीन जो चला है वो निकालना है, तो ओके यस प्लस लैम्डा बाय 2, ओके प्लस लैम्डा बाय 2 विल आल्सो कम। ओके, कैसे निकालता हूँ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये ट्रायंगल देखो, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो नॉर्मल है उसको आने दो, ये थीटा है, ओके ओके, हम जाकर डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आएगा, ये जो नॉर्मल है उसको एक्सटेंड कर दो, लेट मी एक्सटेंड दैट फॉर यू, इफ यू जस्ट एक्सटेंड दिस नॉर्मल, ओके, तो ये थीटा है, ओके, और ये डिस्टेंस डी है, ओके, सो वी कैन दे गेट दिस वैल्यू, ये वाला मिल जाएगा अपने को, है ना, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी डी सेक थीटा, है ना, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, डी अपॉन cos थीटा, राइट, तो दैट विल बी कॉल्ड डी सेक थीटा। ओके, आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, सी दिस वन, दिस ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला जो लाइन है यहाँ पे जा रहा है ना, और ये ठीक है, समझ में आया, एनी क्वेश्चंस, समझा, ये नॉर्मल को एक्सटेंड किया, ये ट्रायंगल, ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला, oh sorry my bad, this will be 2 theta, this is 90, है ना, थोड़ा ट्रायंगल घटिया बनाया बट ठीक है, इसलिए बराबर नहीं बनाया, कैसे बनाना चाहिए इसको, should be this is perpendicular, right, no, and this is like this is 2 theta, ये d sec theta है, ये 90 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज और ये क्या है, ये चाहिए ना मुझे, तो ये x कितना हो जाएगा, एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 2 थीटा, क्या होगा, cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, या तो कंपोनेंट टुवर्ड्स द cos कंपोनेंट, सिंपल, तो विल जस्ट टेक द कंपोनेंट, तो विल गेट दिस वैल्यू एज टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट टू d sec थीटा का cos 2 थीटा कंपोनेंट, so I can say that therefore my part difference will be, what is the part difference, ये वाली प्लस ये वाली ना, this part difference will be d sec theta plus d sec theta cos 2 theta plus lambda by 2, d sec theta कॉमन निकालो, 1 plus cos 2 theta theta plus lambda by 2, 1 plus cos theta क्या था, 2 cos square theta by 2, ठीक है, ओके, प्लस लैम्डा, तो वो टू डी cos थीटा, और अभी मिनिमम चाहिए तो डेल्टा एक्स इज एन लैम्डा फॉर मैक्सिमम, ठीक है, तो 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो यू कैन से लैम्डा, ओके, सो d cos थीटा विल बी लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो विच इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू
समझ में आ गया? समझा? समझ में आएगी बाउंसर? ठीक है? एनी क्वेश्चंस हियर? आई हैव गॉट इट. ओके. एन में रखना तो रख सकते हो. मैंने फर्स्ट मैक्सिमल देता हूँ. ठीक है. तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे. ओके. व्हाट इज पेंडिंग हियर? पेंडिंग में दो टॉपिक है. एक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, विच ये टेस्ट में नहीं होगा. ओके. एंड ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट. इसके साथ साथ एक और आ जाएगा. मतलब ये इस शेप ऑफ फ्रिंज आता है, न्यूटन्स रिंग करके कुछ है वो बचा है. एंड ऑप्टिकल पाथ एंड शिफ्ट ऑफ फ्रिंज ड्यू टू सम रिफ्रैक्टिव मटेरियल पुट ऑन द स्लिट्स. ये दो टॉपिक रहेगा अपना. ठीक है. ओके. बाकी सब हो गया. एंड देन आई कंबाइन दिस विथ डिफ्रैक्शन इन द फॉलोइंग वीक. तो फॉलोइंग वीक में एनीवेज वी हैव एक्स्ट्रा लेक्चर, तो विल डू दैट. ठीक है. Should we write this now?